So everyone keeps asking me this one question, ki how do we make good money as a dancer? And trust me, till very recently I was also not able to figure this one thing out कि आखिर डांस में अच्छे पैसे बनाए तो बनाए कैसे? But I did, and let me tell you a story. So back in 2010 I started dancing. एकदम initial days में ना I used to just love dancing, तो मैं सिर्फ डांस करता था, सीखता था, and I used to perform, and I never used to mind कि इससे पैसे भी बनते. Then I started getting an intern salary. तो एक छोटा सा सैलरी शुरू हुआ जैसे 1000-1500 रुपए, जो बहुत खुश रखता था. But then as the years progressed, घर से पैसे नहीं आते थे, and as a dancer it is very difficult to survive. तो एक मुश्किल भरा एक दौर शुरू हो गया जहाँ पे पैसे नहीं बन पा रहे थे. Coming all the way to 2016, जब मैंने अपना कंपनी खोला, for the first a lot of time, like let's say 3 to 6 months, I was not even able to earn a single rupee in profit, and I was not able to understand कि आखिर ये हो क्यों रहा है. But then एक चीज हुई मेरे साथ. So I got one wedding जहाँ पे I was supposed to do a choreography for 10 dancers. उस फैमिली को वो कोरियोग्राफी बहुत पसंद तो आई, लेकिन हमारा जो फिक्स कॉस्ट था, जो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था, वो मुझे मिला. And that cost was my first rupee and the first 1,000 in profit. But then I realized something. I was able to perform, I was able to choreograph, I was able to teach, but I wasn't earning. But when I did it for someone else, I could earn. So the biggest secret that is there in any of the earnings related to dancing or related to any of the fields is to create value for someone else. ये सेम चीज मैटर करेगा हर पॉसिबल एंगल में जो डांसिंग में होता है. लेट्स से यू परफॉर्म वेरी वेल, आप बहुत अच्छे डांसर हो, आप बहुत ही कमाल के बीट्स पकड़ते हो, आप बहुत अच्छा डांस करते हो, परफॉर्म करते हो, बट अनटिल एंड अनलेस यू परफॉर्म फॉर समवन एल्स, जहाँ पे आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, जैसे आप रियलिटी शो में जाके उनके लिए टीआरपी जनरेट करोगे, या फिर आप कॉर्पोरेट शोज में जाके उनके ऑडियंस को एंटरटेन करोगे, या फिर आप सोशल मीडिया पे आपके वीडियोस डाल के एक ऑडियंस बना लोगे, जो ऑडियंस आपके थ्रू म्यूजिक लेबल्स को या फिर ब्रांड्स को चाहिए होगा, उसके थ्रू आप अर्निंग करोगे. सो एक इक्वेशन याद रखना, मनी इक्वल्स वैल्यू एक्सचेंज्ड. Point number 1, as a performer you can do multiples of things. First, आप social media account खोल सकते हो. Today's time social media has no barriers. कोई भी इंसान कहीं भी बैठ के social media पे वीडियो अपलोड कर सकता है, and he or she can shoot up. और shoot up होने के बाद what happens to you is basically आपको music labels approach करेंगे, आपको brands approach करेंगे, आपको peers approach करेंगे to be able to post on their music or their songs, and you get paid for it. Why you get paid for it? क्योंकि आप उनके लिए एक मार्केटिंग जनरेट करते हो. Second would be corporate events. Corporate events are massive and the money is also massive. So if you are a good performer, I think you should be looking at corporate events as a very, very good earning source, because that is in a way massive and it keeps on happening throughout the year. Weddings are also currently booming in India और बहुत सारा potential है wedding dancers के लिए. If you are an exceptionally good performer, you will get big very fast. As a choreographer, what you can do choreography. Again, आपको as a choreographer एक तो आप आपकी टीम बना सकते हो, वो टीम can perform for you, and आप खुद कोरियोग्राफर बन के उनके लिए कोरियोग्राफी कर सकते हो. या फिर यू कैन कोरियोग्राफ फॉर वेडिंग्स, यू कैन कोरियोग्राफ फॉर कॉर्पोरेट इवेंट्स, यू कैन कोरियोग्राफ फॉर म्यूजिक, यू कैन कोरियोग्राफ फॉर इवन द स्कूल एनुअल्स, इवन फॉर किड्स, इवन फॉर एडल्ट्स. ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ से कोरियोग्राफी रिक्वायरमेंट आता है. ऑल यू हैव टू डू इज मेक योरसेल्फ वैल्यूएबल इन अ वे कि आप अपनी कोरियोग्राफी ना करो, आप जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कोरियोग्राफी करो. फॉर एन एग्जांपल, आपके पास कोई कॉर्पोरेट इवेंट आता है, देयर इज सो एंड सो कंपनी, आप कोशिश करना कि उनके हिसाब से आप एक एक्ट डिजाइन करो. उस एक्ट में सटलिटीज हो, इंटीग्रेशंस हो, जैसे उनके ब्रांड का इंटीग्रेशन हो, आप उनके ब्रांड की कहानी बता पाओ, उस कहानी को आप आगे लेके जाओ, एंड व्हाट हैपेंस थ्रू दैट इज कि आप उनके लिए एक वैल्यू जनरेशन कर दोगे, एंड अगेंस्ट दैट यू विल गेट मोर एंड मोर एंड मोर वर्क. एज अ टीचर यू कैन डू वंडर्स टुडे. जैसे मैं आज ऑल इंडिया वर्कशॉप्स ले रहा हूँ, आई थिंक यू कैन ऑल्सो डू इट. आपको कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको आपका टीचिंग इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको आपका कमांड इंप्रूव करना पड़ेगा, बट वंस डन यू कैन टीच राइट फ्रॉम किड्स टू द एडल्ट्स एंड एवरीवन इन बिटवीन. तो आप बिगिनर्स को सिखा सकते हो, आप एडवांस डांसर्स को सिखा सकते हो, आप स्कूल्स में सिखा सकते हो, आप हर पॉसिबल जगह जहां पे भी डांस की रिक्वायरमेंट होती है, आप एवरीवेयर यू कैन बी अ टीचर. इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट टिप्स. फर्स्ट इज बिल्ड एडिशनल स्किल्स. एज अ डांसर आई अंडरस्टैंड कि आपको डांस से प्यार है और आप सिर्फ डांस करना चाहते हो, लेकिन आपको थोड़े थोड़े अदर स्किल्स भी बिल्ड करने की शुरुआत कर लेनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल्स. आप सर्च करना व्हाट सॉफ्ट स्किल्स आर, जैसे कम्युनिकेशन है, निगोसिएशंस है, ये चीज़ें आपको रोज़ के लाइफ में आपके बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगी. जब भी आप ये सीख लोगे, आई थिंक यू विल बी बेटर एट क्लोजिंग डील्स, यू विल बी बेटर एट कम्युनिकेशन, यू विल बी बेटर एट आर्टिकुलेशन एज वेल.
प्लस सेकंड इज माय स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू यू इज बी वेयर मनी इज। जैसे जहां पे पैसा है, जहां पे जिस सेक्टर में अभी डेवलपमेंट ज्यादा है, उस सेक्टर में आप अगर हो एज अ डांसर तो आपकी ग्रोथ और आपका अर्निंग डेफिनेटली डबल होगी। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो डू लाइक एंड कमेंट, और अगर आपको मेरे कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं तो लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन, डू जॉइन देम।